Good morning, my dear brothers and sisters. मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आपको गुड मॉर्निंग। This is a joy for us to be with you once again as a church. और ये हम धन्यवाद करते हैं कि एक बार फिर से एक कलीसिया के रूप में आपके साथ इकट्ठे होने पे We send our newer greetings to each one of you from Victorious Life Church. हम आपको, आप में से प्रत्येक को विक्टोरियस लाइफ चर्च की ओर से आपको शुभकामनाएं भेजते हैं। In Hindi, we have Jayavant Jeevan Church. और हिंदी में हम इसको कहते हैं जयवंत जीवन चर्च। We are celebrating this year as a year of restoration and consolidation. इस साल को हम मना रहे हैं पुनः स्थापित करना और फिर से चीजों को इकट्ठा करना। This is something the Lord has spoken to us in our hearts to celebrate this year as the restoration and consolidation. ये परमेश्वर ने हमारे हृदय में ऐसा डाला कि इस साल को हम जो हैं सब कुछ चीज़ों को इकट्ठा करना और पुनः स्थापित करना के मना सकें। Hallelujah. हालेलुया। And the verses that we have chosen for these subjects or topics are और जो हमने आज इस विषय के जो पद चुने वो इस प्रकार से हैं। Joel 2:25. योएल 2:25 It says like this, और ये इस प्रकार से लिखा है, I will repay you for the years the locust have eaten. जिन वर्षों की उपज टिड्डियां खा गई हैं। And this is called restoration. और ये कहलाता है पुनः स्थापित करना। Restoration means something that is gone bad and we are with the help of the Holy Spirit bringing it together and restoring it again. और इसका अर्थ यह है कि जो चीज़ें हमारी पिछले दिनों में खो गई हैं वो पवित्र आत्मा की सहायता से उन चीज़ों को दोबारा इकट्ठा करना। And this relates to spiritual things as well as physical things. और ये न सिर्फ आत्मिक है लेकिन ये भौतिक चीज़ों के लिए भी संबंधित है। So as we go further in the Word of God, और जैसे कि हम परमेश्वर के वचन में आगे चलते हैं, you can believe that God will restore everything that has been lost from your life, from your family, ministry and business. और ये आप विश्वास करें कि जो कुछ आपका परिवार के रूप में, सेवा के रूप में, काम के रूप में, व्यापार के रूप में खो गया है वो परमेश्वर हमको दोबारा दे देगा। If you read this whole chapter of Joel chapter 2, और यदि आप ये योएल नबी की पुस्तक का दूसरा अध्याय पूरा पढ़ेंगे, then you will find out that God is interested in restoring everything in our lives. कि परमेश्वर को इस बात में मजा आता है कि हमारे जीवनों में जो कुछ खो गया है उन चीजों को दोबारा पुनः स्थापित करने में And then consolidation. और फिर उनको इकट्ठा करने में। That means इसका अर्थ है that gathering in the harvest, कि फसल को इकट्ठा करना, the fruit that are coming out of your labor, कि जो आपने जो मेहनत की है उसका फल को they must be in your lap. वो आपकी गोद में होना चाहिए। Hallelujah. हालेलुया। And our messages will be based on Matthew chapter 13 verse 30 last part. और जो हमारा जो आज का जो विषय है वो इस मत्ती और 13 अध्याय 30 पद के बी भाग के ऊपर आधारित है। And says, then gather the wheat and bring it into my barn. कि तुम गेहूं को इकट्ठा करो और मेरे खत्ते में ले आओ। So we are believing together that this year will be a year of restoration and consolidation for you and me. तो हम ये विश्वास करते हैं कि ये साल जो है सब चीज़ों को पुनः स्थापित करना और इकट्ठा करना जो आपके और हमारे लिए हैं। How it can be done? और ये कैसे होगा? We have few verses and references from the Word of God, हमारे पास परमेश्वर के वचन से कुछ पद हैं and we can base our belief on the Word of God. और जो हम अपना विश्वास है वो परमेश्वर के वचन के ऊपर आधारित करेंगे। 1 Kings chapter 18, पहला राजा 18 अध्याय, and we will read from verse 41. और हम इसको पढ़ेंगे 41 पद से। It says like this, यहाँ इस प्रकार से लिखा है, and Elijah said to Ahab, go
eat and drink, for there is a sound of heavy rain. So Ahab went off to eat and drink. But Elijah climbed to the top of Carmel, bent down to the ground, and put his face between his knees. Go and look toward the sea, he told his servant, and he went up and looked. There is nothing there. He said, 7 times Elijah said, go back. The 7th time the servant reported, a cloud as small as a man's hand is rising from the sea. 41 पद से फिर एलिया ने अहाब से कहा, उठ कर खा पी, क्योंकि भारी वर्षा की सनसनाहट सुन पड़ती है। तब अहाब खाने पीने चला गया और एलिया करमेल की चोटी पर चढ़ गया और भूमि पर गिरकर अपना मुंह घुटनों के बीच किया और उसने अपने सेवक से कहा, चढ़कर समुद्र की ओर दृष्टि करके देख। तब उसने चढ़कर देखा और लौट कर कहा, कुछ नहीं दिखता। एलिया ने कहा, फिर 7 बार जा। 7वीं बार उसने कहा, देख, समुद्र में से मनुष्य का हाथ का सा एक छोटा सा बादल दिख रहा है। God promised Elijah परमेश्वर ने एलिया से प्रतिज्ञा की that you pray and there will be no rain. कि तू प्रार्थना करेगा, कोई बारिश नहीं होगी। And there was no rain for 3.5 years. और 3.5 वर्ष तक कोई भी बारिश नहीं हुई। And then God again asked him to pray. और तब परमेश्वर ने दोबारा उससे कहा कि तू प्रार्थना कर। And then God sent rain. और परमेश्वर ने बारिश को भेजा। So this was a classic example of restoration in the life of Israelites. और ये जो है एक अद्भुत उदाहरण है इजराइलियों के जीवन में। 3.5 years there was no rain, everything was in difficult situation. 3.5 वर्ष तक कोई बारिश नहीं और परिस्थितियां बड़ी कठिन थी। And then God used Elijah to pray so that he can send rain और again. तब परमेश्वर ने एलिया का इस्तेमाल किया और कहा कि प्रार्थना करो, फिर दोबारा से 3.5 वर्ष तक बारिश हुई। If you want to see restoration in your life, my dear brothers and sisters, मेरे प्रिय भाइयों बहनों, यदि आप अपने जीवन में चीजों को पुनः स्थापित होता देखना चाहते हैं, you and I need to pray. तो आपको और हमको प्रार्थना करना होगा। There may be a question. और यहाँ एक प्रश्न भी उठता है, God has already intended that there will be no rain, then why should Elijah pray? तो परमेश्वर ने ठान लिया था कि कोई भी बारिश नहीं होगी, तो फिर एलिया ने प्रार्थना क्यों की? Then again, when God intended that he will send rain, then there was no need for Elijah to pray for the rains. तो जब परमेश्वर ने ये ठान लिया कि अब बारिश होगी, तो फिर एलिया ने प्रार्थना क्यों की? That is a question. ये एक प्रश्न उठता है। Maybe theological question. हो सकता है सिद्धांतिक रूप से एक प्रश्न हो। But we need to understand when we read the Bible. लेकिन जब हम बाइबल को पढ़ते हैं तो हमें इसको समझना And होगा। when we study the Bible, और जब हम बाइबल का अध्ययन करते then हैं, the Holy Spirit talks to us, तो जब पवित्र आत्मा हमसे बोलता है, and then we understand it, तब हम इसको समझ पाते that हैं whatever God has intended will not come until we pray earnestly. कि जब जो परमेश्वर ठान लेता है वो तब तक पूरा नहीं होगा जब तक कि हम लगन के साथ प्रार्थना नहीं करेंगे। You have information from the Word of God. आपके पास परमेश्वर के वचन का की सूचनाएं हो सकती हैं, Everything there. वह सब कुछ हो सकता है, But you need to pray earnestly for what you are seeking restoration in your life. तो लेकिन आपको प्रार्थना करनी होगी जिन चीजों को आप चाहते हैं कि आपके जीवन में वो चीजें दोबारा पुनः स्थापित हो। Hallelujah. हालेलुया। Without prayer there will be no restoration. बिना प्रार्थना के कोई भी पुनर्स्थापन नहीं होगा। In the New Testament, नए नियम में Lord Jesus said, प्रभु यीशु मसीह ने you कहा, can do nothing apart from me. प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम मुझसे अलग होकर कुछ नहीं कर सकते। Jesus, our Lord, has given us authority on this earth. प्रभु यीशु मसीह जो हमारे परमेश्वर ने हमें इस पृथ्वी पर अधिकार दिया है, But this authority cannot be carried out until we pray earnestly. और ये जो अधिकार है ये तब तक पूरा नहीं होगा जब तक कि
हम लगन के साथ प्रार्थना नहीं करेंगे। So when you want to see restoration in your life, you have to pray according to the will of God. तो जब आप अपने जीवन में चाहते हैं कि पुनः स्थापन हो, तो आपको परमेश्वर के वचन के अनुसार प्रार्थना करनी होगी। We will read James chapter 5 and verse 17 and 18. हम पढ़ेंगे याकूब 5, 17 और 18। Clearly it says about Elijah. यहाँ पर एलिया के विषय में बड़ा स्पष्ट रीति से लिखा है Elijah was a man just like us. कि एलिया जो थे वो हमारे समान व्यक्ति थे। He prayed earnestly उन्होंने बड़े लगन से प्रार्थना की that it would not rain, and it did not rain on the land for 3.5 years. उन्होंने प्रार्थना की कि और 3.5 वर्ष तक बारिश नहीं हुई। Hallelujah. हालेलुया। And verse 18 says, और 18 पद कहता है again he prayed and the heavens gave rain, कि फिर उसने फिर प्रार्थना की और आकाश से वर्षा हुई and the earth produced its crops. और फिर भूमि जो है वो फलवंत हुई। So if you have been facing difficulties, problems, persecution, lack in your life, in any aspect of your life, यदि आप अपने जीवन में किसी भी प्रकार की कमी, घटी और सताव को सहन कर रहे हैं तो we have a hope तो हमारे पास एक आशा है that we can earnestly pray. कि हम लगन के साथ प्रार्थना करें। God is interested in restoring things in our life. परमेश्वर बहुत उसकी इच्छा है कि हमारे जीवन में जो चीजों को पुनः स्थापित करें। I'm talking about those believers who are earnestly the children of God and they seek God's kingdom. मैं बातचीत कर रहा हूँ उन लोगों से जो वास्तव में अपने जीवन में परमेश्वर को खोजते हैं और प्रभु की संतान हैं। God does not delay the restoration process. परमेश्वर जो है पुनर्स्थापन की प्रक्रिया में देर नहीं करता Delay है। comes from our side. जो देरी है वो हमारी ओर से होती I है। see many people, they have lot of time for foolish talking. मैं लोगों को देखता हूँ कि उनको अपने जीवन में मूर्खता की बातें करने के लिए बहुत समय उनके They पास, sit as a family वो एक परिवार के रूप में बैठ जाते from हैं morning till afternoon. कि सुबह से लेके दोपहर तक They have so many things to speak and discuss, उनके पास बहुत चीजें होती हैं बातचीत करने की, but they don't have time to talk about the Bible and its truths. लेकिन उनके पास ये समय नहीं होता कि वो बाइबल की और उसकी सच्चाइयों के बारे में बातचीत करें। And in fact, they don't like it. और वास्तव में वो इसको पसंद भी नहीं करते They हैं। like it only on Sunday mornings. वो केवल पसंद करते हैं रविवार की सुबह बातचीत करना। Do you believe that they will be able to restore things in their lives, in their families? क्या आप ये विश्वास करते हैं कि उनके जीवन में, उनके परिवारों के जीवन में चीजें फिर से ठीक होंगी? No. नहीं, It will take time. उसमें समय लगेगा। So those of you who are hearing this message, तो आप में से वे लोग जो इस संदेश को सुन रहे हैं, you must be ready to restore things in your life. तो आपको तैयार होना होगा अपने जीवन में चीजों को पुनः स्थापित करने के लिए। In the New Testament, नए नियम में there is a book called Acts of Apostles. और नए नियम में एक पुस्तक है जिसका नाम है प्रेरितों के काम की पुस्तक। It is not the book of the work of God. ये परमेश्वर के काम की पुस्तक नहीं। If you read the whole book, यदि आप पूरी पुस्तक को पढ़ेंगे then you will find God did not work there. तो आप देखेंगे कि परमेश्वर ने वह काम नहीं किया। He worked only when the disciples worked. उन्हें तब काम किया जब चेलों ने काम किया। When you work, then God will work. जब आप काम करते हैं तब परमेश्वर काम करता है। When you pray, God works. जब आप प्रार्थना करते हैं तब परमेश्वर काम करता When है। you believe God's word, then you open the door for the restoration in your life. जब आप परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते हैं तो परमेश्वर आपके जीवन में चीजों को पुनर्स्थापित करता God है। has a power to change things and change situations. परमेश्वर के पास इस सामर्थ्य है कि वो परिस्थितियों को और चीजों को बदल दे। But how they will happen? लेकिन वो कैसे होंगी? Become Elijah. आपको एलिया बनना होगा। Pray.
प्रार्थना करनी according होगी to the word of God. परमेश्वर के वचन के What the अनुसार। God has said, जो कुछ परमेश्वर ने कहा है you say. आपको कहना होगा। Speak what has been spoken in the word of God. आप वो बोले जो परमेश्वर का वचन बोलता है। God said there will be no rain. परमेश्वर ने कहा कि कोई बारिश नहीं होगी, So Elijah prayed accordingly. तो एलिया ने भी वैसे ही प्रार्थना की। When after 3.5 years, और 3.5 साल के बाद God said that I will send rain. परमेश्वर ने कहा कि मैं बारिश को भेजूंगा, And Elijah prayed like this. और एलिया ने उसी प्रकार से प्रार्थना And की there was rain. और तब बारिश हुई। So we find a truth of the Bible in this passage. तो हमको इस पद के अंदर परमेश्वर की सच्चाइयों को ढूंढना होगा। And what we find, तो हम क्या पाते हैं that speak what has been spoken in the word of God. कि हमको वो बोलना है जो परमेश्वर के वचन में बोला गया And है। then finally, और तब अंत में we read that God is very much interested to restore everything on this earth. तो परमेश्वर सब चीजों को फिर से पुनर्स्थापित, इस पृथ्वी पर पुनर्स्थापित करने में रुचि रखता है। Revelation chapter 21. प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय, And we want to read it before you. और हम आपके सामने उसको पढ़ेंगे। Revelation chapter 21 verse 1. प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 21 अध्याय और पहला पद। Then I saw a new heaven and new earth, for the first heaven and the first earth had passed away, and there was no longer sea. I saw the holy city, the new Jerusalem, coming down out of heaven from God, prepared as a bride beautifully dressed for her husband. And I heard a loud voice from the throne saying, Now the dwelling of God is with men, and he will live with them. फिर मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही थी और समुद्र भी न रहा। फिर मैंने पवित्र नगर नए यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास उतरते देखा। वह उस दुल्हन के समान थी जो अपने पति के लिए श्रृंगार किए हुए हो। फिर मैंने सिंहासन में से किसी को ऊंचे शब्द से कहते सुना, देख, परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है। वह उनके साथ डेरा करेगा और वह उसके लोग होंगे, और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर होगा। Hallelujah. Hallelujah. So God will not stop just restoring few things in your life. तो परमेश्वर आपकी चीजों में के आपके जीवन में उन थोड़ी चीजों को पुनर्स्थापित नहीं करेगा। He will do everything for you. वो आपके लिए सब कुछ करेगा। If you don't have job, you can speak the word of God and believe it that God will provide it to you and he will do it. यदि आपके पास नौकरी नहीं है तो आप परमेश्वर के वचन को बोलें और विश्वास करें कि परमेश्वर आपको नौकरी देगा। If your marriage is in difficult phase, और यदि आपका विवाह भी संकट में है, you can believe that God will restore it. तो आप ये विश्वास करें कि परमेश्वर उसको पुनर्स्थापित Your करेगा। business, आपके व्यापार को, your life, आपके जीवन को, spiritual life, आपके आत्मिक जीवन को, physical life, आपके शारीरिक जीवन emotional को, life. आपकी भावनाओं के जीवन को, God can restore in your life. परमेश्वर आपके जीवन में उन सब चीजों को पुनर्स्थापित But करेगा। believe it, इस पे विश्वास करें, because God has the power. क्योंकि परमेश्वर के पास सामर्थ्य And है he has expressed the extreme power in the written word called Bible. और उसके पास बहुत अधिक अत्यधिक सामर्थ्य है जो उसके लिखित वचन के अंदर है। Hallelujah. Hallelujah. Whether we understand or not, चाहे हम उसको समझें या ना the समझें, power is available. और जो सामर्थ्य है वो उपलब्ध है। Only thing we have to read the Bible, केवल इतना करना है कि हमको परमेश्वर के वचन को पढ़ना Understand है, it. उसको समझना है, speak it by faith. उसको विश्वास से उसको बोलना है। It does not mean whether you are good person or bad person. इसका कोई मायने नहीं है कि आप एक अच्छे व्यक्ति हैं या बुरे व्यक्ति You हैं। have to come to Jesus, आपको यीशु के पास आना होगा, become his child, उसकी संतान बनना होगा, and then everything that belongs to God
belongs to you. जो कुछ परमेश्वर का है वो आपका है। And then we read just now, और जो अभी हमने भी जो पढ़ा है, new heaven and new earth. नया आकाश नई पृथ्वी, There will be a time on this earth और इसका पृथ्वी पर एक समय होगा that God will restore the whole earth and whole heaven. कि परमेश्वर जो है पूरे पृथ्वी को और पूरे स्वर्ग को फिर से स्थापित कर देगा। The present heaven and present earth, और इस समय का स्वर्ग और इस समय की पृथ्वी they will be finished. कि ये खत्म हो जाएंगे। Why? Because they are corrupted by sin. क्योंकि ये पाप के द्वारा दूषित हो गया है। So God's children will enjoy new heaven and new earth. तो परमेश्वर की जो संतान है वो नए आकाश और नए पृथ्वी के में आनंद मनाएंगे। And that is why we emphasize that we must start living as a restored people. और इसलिए हमें ऐसे जीवन जीना है कि हम पुनः स्थापित किए हुए जीवन है हमारा। Remember the journey of Israelites. याद करिए इजरायलियों की यात्रा। They started from Egypt उन्होंने मिस्र से शुरू की and they ended up in the wilderness और उन्होंने उसका अंत जंगल में किया, because they did not believe God's word. क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के वचन पर विश्वास नहीं They किया। saw the miracles, उन्होंने चमत्कारों को देखा, mighty miracles अद्भुत चमत्कारों in को the land of Egypt. उन्होंने मिस्र के अंदर देखे। Then on the way, और मार्ग में how they received water to drink, कैसे उन्होंने रास्ते में पानी को प्राप्त किया, पीने के पानी को, how they were supplied with the bread from heaven. और कैसे उनको स्वर्ग से रोटी मिली। But you see, लेकिन आपने देखा they grumbled all the time, और वो हर समय बड़बड़ाते रहे, made complaints against God and his people, Moses and Aaron. और वो हमेशा परमेश्वर और उसके जो लोग थे मूसा और हारून के विषय में वे बड़बड़ाते रहे। And that is why the whole generation died in the wilderness. और इसलिए उनकी पूरी उस समय की पीढ़ी जंगल में ही मर गई। What about you and me? आपके और मेरे बारे में क्या है? We can learn from this journey of Israelites from Egypt to the wilderness. तो आपको और हमको भी इस बात से समझना होगा, मिस्र की यात्रा से लेकर जंगल की यात्रा को। A new generation entered in Canaan. और जो नई पीढ़ी थी उसने कनान देश में प्रवेश किया। My dear brothers and sisters, मेरे प्रिय भाइयों बहनों, if you are parents, यदि आप माता पिता हैं, grandparents, यदि आप दादा दादी you have हैं, the responsibility to restore things तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप सारी चीजों को पुनर्स्थापित करें, so that your next generation will enjoy the restoration of God. ताकि आपकी जो अगली पीढ़ी है वो परमेश्वर के पुनर्स्थापन का आनंद उठा सके। Hallelujah. हालेलुया। God is going to do it. परमेश्वर ये करने जा रहा है। This year, इस साल में 2023, 2023 में is the year of restoration and consolidation. 2023 वर्ष है पुनर्स्थापित करने का और इकट्ठा करने का। Hallelujah. हालेलुया। What about consolidation? और इकट्ठे करने के विषय में क्या है? We have read about the consolidation gathering in the harvest. हमने अभी इकट्ठा करने के विषय में पढ़ा है कि फसल को इकट्ठा करना। Matthew chapter 13 मत्ती 13 अध्याय and verse 30. और 30 पद। If we read 30 verse, यदि हम 30 पद को पढ़ेंगे then it says, let both grow together until the harvest. कि दोनों चीजों को फसल को पकने तक बढ़ने दो। And at that time I will tell the harvesters, और तब मैं कटनी काटने वालों को कहूंगा, first collect the weeds and tie them in bundles to be burned. कि पहले तुम जंगली दानों को इकट्ठा कर लो, उनके गट्ठर बांध लो, उनको जला दो, And then bring the wheat into my barn. और गेहूं को मेरे खत्ते में इकट्ठा कर दो। Two kinds of harvest and crops. दो प्रकार की फसलें हैं And Jesus, our Lord, is talking about both of them. और प्रभु यीशु मसीह दोनों फसलों के बारे में बातचीत कर रहे हैं। He says the weeds will not be restored. उन्होंने कहा कि जो जंगली दाने वो पुनर्स्थापित नहीं होंगे And the weeds,
that has not been restored will not be consolidated. कि जो जंगली दाने हैं वो पुनः स्थापित नहीं होंगे, ना वो इकट्ठे किए जाएंगे। Hallelujah. हालेलुया। But for his children, लेकिन उसकी he संतानों के लिए says that wheat will be gathered into his barn. कि जो गेहूं के जो दाने हैं वो उसके खत्ते में इकट्ठे किए जाएंगे। So we must live as the wheat, तो हमको एक गेहूं की तरह जीवन जीना है useful for the bread, कि ताकि हम उस रोटी के योग्य बन सके, useful for the harvest, हम फसल के योग्य बन सके, so that God will keep us with himself. ताकि परमेश्वर हमको अपने साथ रखे। Hallelujah. हालेलुया। We are not living a life like weeds. हमको एक जंगली दानों की तरह जीवन को नहीं जीना है। We have to live a life of wheat that gives bread to the eater. और हमको एक गेहूं के दाने की तरह जीवन जीना है ताकि हम खाने वालों के लिए रोटी बन सके। And this is what we call restoration. और यही कहलाता है पुनः The स्थापन things करना। that have been scattered in your life, जो वो चीज है जो आपके जीवन में तितर बितर हो गई हैं, you need to consolidate them. उनको आपको इकट्ठा करना होगा। We'll continue this series in the whole month of January, और हम जो इस सीरीज को पूरी जनवरी भर में चलाएंगे, and we want you to see that restoration is coming into your life, और तब आप देखेंगे कि पुनः स्थापन आपके जीवन में आ रहा in है, your family, आपके परिवार in में, your business, आपके व्यापार में, job, आपकी नौकरी में, your ministry, आपकी सेवा में, and even in your city. और यहाँ तक कि आपके शहर में भी। Hallelujah. हालेलुया। God is good, परमेश्वर भला है and he will do it for us. और वो हमारे लिए भलाई को And then उत्पन्न finally करेगा। we are waiting for the whole restoration of the earth and heaven. और अंत में हम इंतजार कर रहे हैं उस पुनः स्थापन का। And that will happen when our Lord Jesus comes back to take his bride. और ये तब होगा जब हमारे प्रभु यीशु मसीह अपने दुल्हन को वापस लेने के लिए आएंगे। Hallelujah. हालेलुया। What a marvelous joy that will be on that day. और वो कितना अद्भुत दिन होगा उस वो दिन जब प्रभु आएंगे। We are together preparing for that day. और उस दिन की हम तैयारी कर रहे हैं। But first we need to become like Elijah. लेकिन सबसे पहले हमको एलिया की तरह बनना Pray होगा। according to the word of God. परमेश्वर के वचन के मुताबिक हमें God प्रार्थना is करनी होगी। really interested in restoring things in your life. परमेश्वर वास्तव में आनंदित होता है कि वो हमारे जीवन में चीजों को पुनः स्थापित करने And में, he is happy to consolidate things in our lives. और वो खुश होता है कि हमारे जीवन में चीजों को इकट्ठा कर But we दे। have to work in partnership with God. लेकिन हमको परमेश्वर के साथ सहभागिता में काम करना होगा, Because God works, we also work. क्योंकि परमेश्वर काम करता है, हमें भी काम करना होगा। Hallelujah. हालेलुया। Shall we pray together? आइए हम एक साथ मिलकर प्रार्थना Father करेंगे। God, we thank you for this word that we have preached to our dear brothers and sisters. परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद करते इस वचन के लिए जो आज हम अपने भाई बहनों के साथ बांटा है। It has blessed me personally इसने मुझे व्यक्तिगत रूप से आशीषित किया है in many areas of my life. मेरे जीवन के कई क्षेत्रों में। And if it has blessed me, it will bless my dear brothers and sisters who are watching us. यदि ये मुझको आशीषित कर सकता है तो मेरे वो भाई बहन जो मुझे देख रहे हैं उनको भी आशीषित कर सकता Father है। God, we pray परमेश्वर पिता, हम प्रार्थना that करते your हैं Holy Spirit will help our brothers and sisters. कि आपका पवित्र आत्मा हम भाई बहनों की सहायता करे, That this year will be a remarkable in their lives. और ये जो साल है उनके जीवन में एक अद्भुत वर्ष हो जाए, And they will see the restoration in their lives. और वो अपने जीवन में पुनः स्थापन को देख सके। Lord, start from today. प्रभु आज ही से शुरू कर दे। No one can do anything apart from you. कोई भी आपसे अलग होकर कुछ नहीं कर We सकता have to है। come back to the Bible. हमको बाइबल के पास दोबारा आना होगा। We need the Holy Spirit. हमें पवित्र आत्मा की आवश्यकता And है। then we pray that consolidate everything that is needed to be consolidated in the lives of your children. और प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं हमारे आपके बच्चों के जीवन में जिन चीजों को पुनः स्थापन करना और इकट्ठा करना है, Bless everyone, O God. ओ प्रभु जी प्रत्येक को आशीष दे। In Jesus' mighty name we pray. इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं। Amen आमीन and amen. और आमीन। Hallelujah. God bless हालेलुया। you.
परमेश्वर आशीष दे आप Enjoy your सबको। life in the Lord. अपने जीवन को प्रभु में अपने जीवन को आनंदित बनाएं। And if you find this channel useful for you, यदि आप पाते हैं कि ये चैनल आपके लिए उपयोगी है, you can subscribe to it. तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। You can subscribe to it. आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं And then you can share with your people. और तब आप अपने लोगों को इसके साथ को बांट सकते हैं। Hallelujah. हालेलुया। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे।